ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیکھیں، انگریزی لکھنے یا بولنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن پر عبور حاصل ہو، اور اس کے تھوڑے سے اصول ہیں۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ تبدیل کرنی آنی چاہیے، ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ فقرہ بنانا آنا چاہیے۔ تو لہذا اپنے یا کسی شخص کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو دو مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہم ان الفاظ کو اپنے لفظوں میں ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے طریقے کو ڈائریکٹ بلا واسطہ اور دوسرے طریقے کو بالواسطہ انڈائریکٹ کہتے ہیں۔ مثلا عمران said to his father, I need more money. I need more money. تو یہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ عمران told his father that he needed more money. تو اگر انڈائریکٹ طریقے سے ہم بات کریں گے، تیسرا شخص کوئی بات کرتا ہے کہ عمران نے بتایا اپنے والد کو کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہی نیڈیڈ مور منی، ہی نیڈیڈ مور منی۔ بولنے والے کے صحیح الفاظ قوموں کے اندر یعنی واو معکوس میں ہیں۔ جو قوموں کے اندر عبارت ہے بولنے والے کی، اس کو رپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں۔ قوموں کے اندر جو ڈبل کوما ہم لگا کر لکھتے ہیں، اس کے اندر جو عبارت ہے اس کو ہم رپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں۔ اور ورب نے جو رپورٹڈ سپیچ متعارف کروائی ہے اسے رپورٹڈ ورب کہتے ہیں، اسے رپورٹڈ ورب کہتے ہیں۔ نیچے دی گئی مثال ذرا دیکھیں۔ آئی نیڈ مور منی، سیڈ جو ہے رپورٹڈ ورب ہے، اور آئی نیڈ مور منی رپورٹڈ سپیچ۔ بیان کرنے کے دو طریقوں کو یاد رکھنا چاہیے جو کہ درجہ ذیل ہیں۔ ڈائریکٹ سپیچ ہمیشہ قوموں یعنی واو معکوس میں بند ہوتے ہیں اور ہمیشہ بڑے حروف سے شروع ہوتے ہیں، اور انڈائریکٹ سپیچ میں رپورٹنگ ورب کو رپورٹنگ سپیچ سے الگ کرنے کے لیے کوئی کوما اور ڈبل کومے یعنی واو معکوس استعمال نہیں ہوتے۔ ورب رپورٹنگ ورب کے ٹینسز کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ جو قوموں سے پہلے والی عبارت ہے اس کا ٹینس تبدیل نہیں ہونا، اور جو قوموں کے اندر والی عبارت ہے ٹینس اگر تبدیل ہونا ہے تو اس کا ہونا ہے۔ اگر حروف جار ضروری ہے تو رپورٹنگ ورب کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ تو باقی ساری چیزیں جو ہیں ہم نے استعمال کرنی ہے۔ اگر رپورٹنگ ورب میں فعل حال ہے، یعنی جیسا کہ سے، از، ایم، آر، سینگ، ہیز، ہیو، سیڈ اور ہیو بن، ہیز بن، اور اس طرح اگر استعمال ہوتا ہے، اور اگر مستقبل میں ہے شیل، ول اور شیل
देखिए डियर स्टूडेंट, पहले हमने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर और कॉमों से बाहर वाली इबारत का वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, जैसा कि ये है ही सेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो कहता है, और कॉमों के अंदर वाली इबारत जो है वो जिस मर्जी टेंस में हो वो तब्दील नहीं होगी, और वो कहता है कि वो एक अच्छा लड़का है। और इसका हम इनडायरेक्ट इस तरीके से बनाएंगे, ही सेज दैट ही इज ए गुड बॉय, गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। वो कहता है कि वो एक अच्छा लड़का है। देखें, इसमें हमने कोई तब्दीली नहीं की। और आज जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमों से बाहर वाली इबारत जो है, अगर उसका वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस या फ्यूचर में है तो फिर हमने सिर्फ दैट लगाकर फिक्रा मुकम्मल कर लेना है। ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए। आगे ये देखें, दूसरा फिक्रा है हमारे सामने, ही विल से साजिद कैन गो, ही विल से, ही विल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हुआ है, साजिद कैन गो, वो कहेगा साजिद जा सकेगा। तो इसको हमने किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज किया, he will say that Sajid can go, that Sajid can go, that Sajid can go। और देखें, हमने सिर्फ इसमें दैट ही लगाया है। आगे फिक्रा नंबर 3 में आ जाएं, he says you are a good boy, he says, आगे दैट लगाया, you are a good boy, फिक्रा मुकम्मल कर दिया। और फिर कॉमों से बाहर वाली इबारत में फिर शैल इस्तेमाल हुआ, और शैल इस्तेमाल हुआ, आई शैल से शी ब्रॉट ए बुक, आई शैल से दैट शी ब्रॉट ए बुक। इनडायरेक्ट में हमने तब्दील कर दिया। तो ये इंतहाई आसान तरीक़ेकार है। अगर कॉमों से बाहर वाली इबारत का टेंस जो है फ्यूचर या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में है तो फिर आगे हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तब्दीलियां करेंगे इसके पार्ट 2 में जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे। उसके लिए थोड़ी सी हमने तैयारी कर लेनी है। उसके लिए दर्जा झैल अल्फाज को तब्दील करेंगे। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये अल्फाज ज़रा आपने देख लेने हैं। नाउ को देन में, अगो को बिफोर में, और दिस को दैट में, टुडे को दैट डे में तब्दील कर देंगे, दीज को दोज में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, और हेयर को देयर में, और दस को सो में, इट को दैट में तब्दील कर देंगे, और नेक्स्ट को द फॉलोइंग डे में तब्दील कर देंगे, और यस्टरडे को प्रीवियस डे में तब्दील कर देंगे, और फिर यस्टरडे को बाद जगह पर द डे बिफोर में भी तब्दील करना पड़ेगा। तो ये तब्दीली है और इन तब्दीली को आपने मद्देनज़र रखना है। और बाकी इंशाअल्लाह अगला जो है वो लेक्चर हम, ये चूँकि काफ़ी लंबा हो गया है तो लिहाजा दूसरा हिस्सा हम इसका पढ़ेंगे। और इंतहाई आसान चीज़ है, ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। आज जो हमने सीखा बड़ा आसान सा है कि अगर कॉमों से पहले वाली इबारत में टेंस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है या फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हुआ है तो कोई तब्दीली नहीं होनी, और बस दैट लगाकर फिक्रा जो है मुकम्मल कर लेना है। तो इसको एक बार सीखें, पढ़ने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे लोग हैं। खुदा हाफ़िज़।
डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को समझने के लिए प्रोनाउन को समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये हम किस तरीके से इसको तब्दील करेंगे, तो सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन। ऐसे प्रोनाउंस जिनमें हमारी शख्सियत शामिल हो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आई, वी, आई सेड, आई हैव डन माई होमवर्क, आई सेड दैट आई हैड डन माई होमवर्क। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया है हमारे पास, और इसको आपने देख लेना है कि जिसमें हम शामिल हों, मैं, और उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। और दूसरा है हमारे पास सेकंड पर्सन। ऐसी शख्सियत जिनसे हम मुखातब हों सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर यू, द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर वर्क वेल। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डन माई वर्क वेल। तो ये देखें किस तरीके से हमने इनको तब्दील किया है कि द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डन माई वर्क वेल। यानी टीचर को हमने उसको मी के मुताबिक कर दिया है, मी के मुताबिक। मी का हमने आई बनाया, डन माई वर्क वेल। तो इस तरीके से हमने इसको ज़रा तब्दील करना है और आपने देख लेना है। सेकंड पर्सन के बाद हमारे पास आता है थर्ड पर्सन। और ये ऐसी शख्सियात जिनके बारे में हम बयान कर रहे हों थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ही, शी, इट, दे। आई सेड टू यू, देखें इसको तब्दील करने का क्या तरीका है। ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। I told you that he should not be trusted. I told you that he should not be trusted. यानी तीसरे बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको तीसरा ही रहने देंगे। तो ये आपने देख लेने हैं पर्सन को कैसे तब्दील किया जाता है, और फिर हम आगे चल